السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ سب کی معصوم شراٹ برشاد۔ آج ہم سیریز کے نیو ایپیسوڈ ریڈ کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو لاسٹ میں پسند آئے گی۔ جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے کر لے اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ لازمی کرے گا۔ چلیں ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول اسیریش اسکلم لائب ارشاد، ایپیسوڈ 40۔ عمل جیسے جیسے وہ میسج پڑھ رہی تھی اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے تھے۔ ہر لفظ پڑھ کر اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اب اسے اپنی اس غلطی کی معافی مانگنی تھی۔ اسے اس تھپڑ کی پر شرمندگی تھی جسے مارنے سے پہلے اگر وہ صرف ایک لمحہ اس کی بات سن لیتی تو شاید آج یہ نوعیت نہ آتی۔ دل پشیمانی سے بوجھل تھا۔ سوری ایان، مجھے تمہیں تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، مجھے تمہاری بات سن لینی چاہیے تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے بہتے آنسو صاف کیے، گہرا سانس لیا اور موبائل ہاتھ میں لے کر ایک میسج ٹائپ کیا۔ میسج بھیجتے وہ بلو ٹک ہو گئے تھے۔ نہیں، کوئی بات نہیں عمل، تمہارا حق بنتا تھا، پلیز میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، تمہیں ساری بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور میسج بھیجنے کے فوراً بعد ہی ایان کی کال آ گئی تھی۔ عمل نے بنا ایک لمحہ ضائع کیے فوراً کال ریسیو کر لی تھی۔ اس کے بعد جیسے وقت تھم سا گیا، دونوں گھنٹوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ ایان نے شروع سے لے کر آخر تک ایک ایک بات میں دو باتیں اور ملا کر عمل کے سامنے رکھ دی تھی۔ عمل خاموشی سے سب سنتی رہی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوتا جا رہا تھا۔ اچھا برہان آنے والے ہیں، وہ شک کریں گے، میں تم سے کل ملتی ہوں، عمل نے دھیمی آواز میں کہا۔ ایان نے بھی خاموشی سے اس کی بات مان لی تھی اور عمل نے کال بند کر دی۔ فون سائڈ پر رکھتے وہ تھکن اور ذہنی سکون کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بستر پر لیٹ گئی تھی اور چند ہی لمحوں میں نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ رات کی آخری پہر برہان گھر لوٹا تو گھر میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اندر آتے ہی اس نے سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر بستر پر پرسکون سوئی عمل پر پڑی تھی۔ عمل نے اس نے خاموشی سے اپنے کپڑے بدلے اور سونے کی نیت سے اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ لیٹنے سے پہلے اس نے ایک نظر عمل پر ڈالی تھی۔ شام کو وہ اسے بے حد پریشان، الجھی ہوئی اور کھوئی کھوئی لگی تھی، مگر اس وقت وہ ہر پریشانی سے بے نیاز نہایت پرسکون نیند سو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر برہان کے لبوں پر بے اختیار ایک مطلب سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ دل کو عجیب سا اطمینان محسوس ہوا تھا۔ پھر وہ خاموشی سے اپنی کروٹ بدل کر لیٹ گیا، جبکہ کمرے کی خاموش فضا میں دونوں اپنی اپنی بے خبری میں نیند کی آغوش میں تھے۔ صبح کا حسین وقت تھا، پرندے چہچہاتے ہوئے اپنی رزق کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ سورج کی ہلکی ہلکی سنہری کرنیں کھڑکی سے اندر آ کر ختیجہ کے کمرے میں بکھر رہی تھیں، مگر ان سب کا ختیجہ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو ایسے گہری نیند سو رہی تھی جیسے دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو۔ ختیجہ اٹھ جاؤ، پہلے ہی دن یونس کے لیے لیٹ ہونا ہے کیا؟ زمینہ بیگم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے قدرے اونچی آواز میں بولی تھی، مگر ختیجہ تو جیسے کھڑے ہوئے بھیج کر سو رہی تھی۔ زمینہ بیگم نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار اسے آوازیں دی، مگر مجال تھی جو وہ ٹس سے مس ہوتی۔ آخر کار انہوں نے اس کی اوپر سے کمبل کھینچ لیا۔ ختیجہ، اگر اب بھی تم نہ اٹھی تو مجھے اپنی ماں نہ کہنا، زمینہ بیگم نے مصنوعی غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ جی زرمینہ بہن، بس 5 منٹ تھے، ختیجہ آنکھیں ملتے شرارت سے بولی۔ ختیجہ، میں آخری بار کہہ رہی ہوں، میں برہان کو بھیجوں گی تمہیں اٹھانے کے لیے بھی۔ زرمینہ بیگم نے آخری حربہ آزمایا۔ یہ سنتے ہی ختیجہ نے ایک آنکھ کھولی، پھر منہ بنا کر آہستہ سے اٹھ بیٹھی۔ کیا ماما، آپ ہر وقت بھائی کی دھمکیاں دیتی رہتی ہیں؟ وہ سستی بھری آواز میں بات سمیٹتے ہوئے بولی تھی۔ اٹھ جاؤ ذرا، ٹائم تو دیکھو کیا ہو رہا ہے، یونی کے پہلے دن ہی لیٹ ہونا ہے کیا؟ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ، بھائی تمہارا انتظار کریں، زمینہ بیگم کمرہ سمیٹتے ہوئے بولی تھی۔ ختیجہ نے گھڑی پر نظر ڈالی تو اس کی آنکھیں ہلکی سی پھیل گئی۔ ماما جان، کیا ہے یہ؟ تھوڑی جلدی اٹھاتی تھی، آپ پہلے ہی دن لیٹ ہو جاؤں گی اب میں۔ وہ جلدی سے بستر سے اترتے ہوئے کپڑے اٹھا کر واش روم کی طرف بھاگی۔ اس کی بات سن کر زمینہ بیگم نے بے اختیار ماتھے پر ہاتھ مارا۔ 7 بجے سے اٹھا رہی ہوں تمہیں، مگر تم نے سننی کب ہوتی ہے؟ اور اب یہ سارا بلیم اپنی ماں پر ڈال دو بس۔ وہ کمرہ سمیٹتے سمیٹتے ہلکے سے طنزیہ انداز میں بولی تھی۔ ترمینہ بیگم کی بات سن کر ختیجہ کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ واش روم کے دروازے پر پہنچ کر وہ آہستہ سے خود سے ہی بڑبڑائی، دیسی مامس، اور پھر مسکراتے ہوئے واش روم کے اندر چلی گئی تھی، جبکہ زرمینہ بیگم اسے دیکھ کر سر ہلاتے ہوئے اپنی بیٹی کی سستی پر دل ہی دل میں مسکراتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ختیجہ تیار ہو کر کمرے سے باہر آنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اس نے بیبی پنک کلر کا خوبصورت سوٹ پہنا ہوا تھا، جبکہ وائٹ دوپٹہ اسکارف کی صورت میں بڑے سلیقے سے اوڑھا ہوا تھا۔ میک اپ کے نام پر صرف ہلکا سا گلوز اور آنکھوں
उसके आंखों में काजल था जो उसकी मासूम शख्सियत को मजीद निखार रहा था। हाथ में घड़ी पहने हुए उसने आईने में खुद पर एक नजर डाली, फिर बेख्तियार मुस्कुरा उठी। लग तो प्यारी रही हूँ माशाल्लाह खतीजा, तुम्हें बस किसी की नजर ना लगे, वो खुद ही में खुद से कहती मुस्कुराती थी और अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर निकल आई। अस्सलाम। डाइनिंग हॉल में आते हुए उसने सबको एक साथ सलाम किया और जल्दी जल्दी नाश्ते की टेबल पर ब्रेड का एक स्लाइस उठा लिया। वालेकुम अस्सलाम, सब ने मुस्कुराते हुए उसके सलाम का जवाब दिया। अरे खतीजा सुनो जरा, पहले अमल को उठा दूं, शर्मिला बेगम नाश्ता बनाते हुए बोली। मामा जान मुझे देर हो रही है, प्लीज आप भी उठा लें और आप अमल भाभी को देख भी लीजिएगा, उनकी तबीयत तो ठीक है ना, क्योंकि कल रात उनके कमरे की लाइट काफी देर तक जल रही थी। खतीजा जूस का गिलास एक ही सांस में खत्म करते हुए बोली। अच्छा हाँ, शायद बुरहान का इंतजार कर रही होगी, उसे रात काफी देर हो गई थी ना, तो बेचारी उसी के इंतजार में जाग रही होगी, शर्मिला बेगम ने अंदाजा लगाते हुए कहा। पता नहीं, हो सकता है, मगर फिर भी आप उनसे पूछ लीजिएगा कि वो ठीक है या नहीं, खतीजा ने फिक्रमंदी से कहा, फिर जल्दी से बुरहान की तरफ मुड़ी। भाई चले, देर हो जाएगी, ये कहते हुए उसने बुरहान का हाथ पकड़कर उठाया था। बुरहान हल्का सा मुस्कुराया, अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और दोनों ने घर वालों के अल्लाह हाफिज कहा, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी घर से निकल गए थे। और गुड़िया कैसे लग रहा है, क्यों नहीं जा रही हूँ, पहला दिन है, कैसी फीलिंग है? बुरहान ने खतीजा को गैर मामूली तौर पर खामोश देखा तो मुस्कुराते हुए बात का आगाज किया। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने सुना है पहले दिन रैगिंग होती है और सीनियर्स लड़के या लड़कियां जो कहें वो करना पड़ता है। खतीजा ने मुंह बनाते हुए अपनी परेशानी बयान की थी। बुरहान हल्का सा मुस्कुराया। कोई कुछ कहे तो मुंह तोड़ देना, डरना मत, बाकी आपका भाई संभाल लेगा, उसने पुरअतमाद लहजे में कहा। ये सुनकर खतीजा के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अच्छा भाई सुने, वो मासूम सी शक्ल बनाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, जबकि बुरहान पहले ही उसे देख रहा था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि उसकी बहन अब क्या मांगने वाली है। बोलो गुड़िया, बुरहान भी उसी के अंदाज में बोला। पैसे दे दे, मैंने सुना है उनकी कैंटीन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। खतीजा ने मासूम सा चेहरा पर पटाते हुए बुरहान बेख्तियार हंस पड़ा। उसने अपना वॉलेट निकाला, चन्नू निकाल कर खतीजा की तरफ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए बोला, खाने के अलावा भी कुछ कर लिया करो मेरी मासूम बहन। भाई कुछ खाती हूँ तभी तो दिमाग चलता है, खाली पेट तो मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। खतीजा ने फौरन पैसे पकड़ लिए और शरारती अंदाज में बोली। अच्छा लेकिन कुछ उल्टा सीधा मत खाना और अपना ख्याल रखना और किसी से डरना मत, आपका भाई हमेशा आपके साथ है, बुरहान ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा था। थैंक यू भाई, लव यू, खतीजा खुशी से उसे गले लगाकर बोली और गाड़ी से निकलने लगी, मगर बुरहान ने उसे आवाज देकर रोक दिया। खतीजा बेटा मेरी बात सुनो। जी भाई बोले। खतीजा ने गाड़ी का दरवाजा जो वो खोल चुकी थी दोबारा बंद करते हुए कहा। बुरहान के चेहरे की मुस्कुराहट अब मध्यम पड़ गई। अमल को क्या हुआ था? जब मैं शाम को कमरे में गया तो उसकी आंखें रोने से सूजी हुई थी। मैंने पूछा भी मगर उसने कुछ नहीं बताया, तुम बताओ क्या हुआ था? बुरहान की बात सुनते ही खतीजा के चेहरे का रंग बदल गया। एक पल वो घबरा गई। नहीं भाई कुछ नहीं, उसने अटकते हुए जवाब दिया। बुरहान ने नरमी से उसकी तरफ देखा। गुड़िया मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मुझ पर यकीन करो, सच बताओ, और दो जिंदगी का मामला है और यकीनन आप भी नहीं चाहोगी कि इन दोनों में से किसी एक की जिंदगी में भी जुदाइयाँ अजियत है। बुरहान का इशारा अपनी और अमल की जिंदगी की तरफ था। खतीजा ने गहरा सांस लिया और आखिरकार सब कुछ बताने लगी। भाई कल और मैं अमल मार्केट गए थे, अमल बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब हमने शॉपिंग करके वापस आ रहे थे तो हमारी टक्कर एक लड़के से हुई और वो लड़का कोई और नहीं अयान था। अमल ने उसे मुकम्मल नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने लगी, मगर वो हमारे पीछे पीछे आने लगा। फिर जब उसने अमल का हाथ पकड़ा तो अमल ने भरे बाजार में उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। अमल ने उससे कहा था कि वो अब आपकी बीवी है, उस पर सिर्फ आपका हक है, किसी और का नहीं। अयान ने कहा कि तुमने मेरी बेइज्जती की है, तो अमल ने जवाब दिया कि तुम इसके लायक हो। फिर हम दोनों घर वापस आ गए थे। भाई उसने मेरे सामने खुद को आपकी बीवी कहा था और अपना तारुफ भी आपके नाम से कराया था। बुरहान खामोशी से सब सुनता रहा। उसके चेहरे पर खुशी और गुस्से दोनों के मिले जुले तासुरात नुमाया थे। खुशी इस बात की थी कि अमल ने खुद को उसकी बीवी मानते हुए अयान के सामने उसके हक का इतराफ किया था, जबकि गुस्सा इस बात पर था कि अयान ने एक बार फिर अमल को छूने की कोशिश की थी। कुछ देर के खामोश रहने के बाद बुरहान ने दोबारा सवाल किया, अच्छा लेकिन वो रोई क्यों थी? भाई वो सिर्फ इसलिए रोई थी क्योंकि वो सब कुछ बड़ी मुश्किल से भूल पाई थी, मगर अयान के सामने आने से उसका माजी फिर से उसके सामने आ गया था। लेकिन उसे मैंने चुप करा दिया था। आप गुस्सा मत करना उस पर, वो बहुत बदल गई है, खतीजा ने मासूमियत से कहा था। बुरहान के लबों पर एक पुरसकून सी मुस्कुराहट आ गई। अपनी बीवी पर गुस्सा करना, उस पर चिल्लाना सबसे घटिया अमल है, ये काम न मर्द करते हैं, आपका भाई कभी ऐसा काम नहीं करेगा, उसने निहायत संजीदगी से कहा। जाओ अपनी यूनी जाओ, बुरहान नरम लहजे में बोला। जी अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज, खतीजा मुस्कुराते हुए बोली और गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। बुरहान कुछ देर उसे यूनी से
के गेट की तरफ जाते हुए देखता रहा। जब वो उसकी नज़रों से ओझल हो गई तो उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, किसी का नंबर मिलाया और फ़ोन कान से लगाया। हाँ, पहुँच गई तुम? ख़याल रखना, मुख्तसर सा जुमला कहकर उसने कॉल काट दी, मगर उसकी आंखों में अब एक अलग सी संजीदगी उतर आई थी। जब अमल की आंख खुली तो उसने बेख्तियार अपने बराबर में देखा। बेड का दूसरा हिस्सा खाली था, बुरहान कमरे में मौजूद नहीं था। वो फौरन उठकर बैठ गई। कुछ देर खामोश बैठी रही, फिर कुछ सोचते साइड टेबल पर रखा मोबाइल उठाया, स्क्रीन रोशन करते ही होते ही व्हाट्सएप की चंद नोटिफिकेशंस के आंखों की नजरों के सामने से गुजरने लगे। उसने सबको ऑन करते फौरन चैट लॉक खोला, जहां अयान का नंबर उसने प्राइवेट एक लॉक में महफूज कर रखा था ताकि बुरहान को किसी किस्म का शक ना हो। हमने ने खामोशी से अयान के मैसेज का मुख्तसर सा जवाब दिया, फिर मोबाइल एक तरफ रखकर फर्श फ्रेश होकर हुई और कमरे से बाहर निकल आई। अस्सलाम वालेकुम चाची, आई एम सॉरी, रात को काफ़ी देर हुई सोई थी इसलिए उठने में देर हो गई। अमली किचन में यादें काम करती ज़रमीना बेगम को देखते हुए हल्की सी शर्मिंदगी के साथ कहा। वालेकुम सलाम, कोई बात नहीं बच्चे, खदीजा ने बताया था तुम्हारे कमरे की लाइट काफ़ी देर तक ऑन रही थी, शायद बुरहान का इंतजार कर रही थी तुम। कोई बात नहीं, तुम्हारा अपना घर है, ज़रमीना बेगम ने शफकत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। जी जी चाची, वो बस, अम्मा ने नजर चुरा कर अटकते हुए जवाब दिया, मगर बात मुकम्मल न कर सकी। वो खामोशी से वहां से निकली और लॉन्च में बैठे आगा जान के पास आ गई। अस्सलाम वालेकुम आगा जान। वालेकुम अस्सलाम, मेरी बच्ची कैसी हो? आजकल तो नजर ही नहीं आती, कहाँ रहती हो? अब तो अपने आगा जान को भी वक्त नहीं देती, क्या हमसे नाराजगी है? आगा जान ने मसनूई शिकवा करते हुए पूछा। अमल मुस्कुरा दी। नहीं आगा जान, आपसे भला कैसी नाराजगी, आप हमसे बड़े हैं, आपसे नाराज होकर जहन्नुम थोड़ी जान कमानी है आपकी। अमल, उसने एक आंख दबाकर शरारती अंदाज में कहा। आगा जान बेख्तियार हंस पड़े। माशाल्लाह, आज तो मेरी बच्ची ज़रूरत से ज़्यादा खुश लग रही है, लगता है बुरहान तुम्हें बहुत खुश रखता है। आगा जान के ये अल्फाज सुनते ही अमर के चेहरे की मुस्कुराहट जैसे किसी ने छीन ली, उसकी आंखों में उदासी उतर आई। आगा जान प्लीज, उसके अलावा कोई और बात करें, आप जानते हैं ना मेरा और बुरहान का तो कोई तालमेल ही नहीं। अमल ने मुंह बनाते हुए आगा जान ने गहरा सांस लिया, फिर नरमी से उसके सर पर हाथ फेरा। मेरा बच्चा, अब वो तुम्हारा शौहर है और तुम उसकी बीवी, जानती हो मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं, अगर एक भी साथ छोड़ दे तो दूसरा भी काम का नहीं रहता। रिश्ता निभाने के लिए दोनों को एक दूसरे का साथ देना पड़ता है। आगा जान बोल रहे थे और अमल खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। शायद वो हर लफ्ज को समझने की कोशिश कर रही थी। आगा जान, मगर बुरहान, अमल ने कुछ कहना ही चाहा था कि आगा जान ने मुस्कुराकर उसकी बात काट दी। अमल, मेरी प्यारी बेटी, तुम जानती हो तुम्हारे लिए आगा जान भी कभी बिल्कुल बुरहान जैसे थे। वो उससे गुस्सा नाक पर रहता था। अमल ने हैरत से उन्हें देखा तो वो हल्के से मुस्कुराए और माजी की यादों में खो गए। हमारी मरहूम दादी जान मेरी फर्स्ट कजिन थी और मैं उन्हें बेहद बेहद चाहता था, मगर वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, जैसे वो मुझसे कोई बैर हो। जहाँ मुझे देखती अपना रास्ता बदलने की बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन अल्लाह की मर्जी को कौन टाल सकता है? आखिरकार उसने हमें एक ही कश्ती का मुसाफिर बना दिया, यानी हमारी शादी हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब बदलता चला गया। वही लड़की जिसे कभी मुझसे सख्त नफरत थी, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई। फिर एक दिन वो मुझे छोड़कर चली गई, अपनी बेशुमार यादें मेरे हवाले करके। आज उन्हीं यादों के सहारे गुजार रहा हूँ। आगा जान ने बात मुकम्मल करके मुस्कुराते हुए अमर की तरफ देखा। देखो, कहीं से लगता है कि मैं भी कभी बुरहान की तरह गुस्से वाला इंसान था। आगा जान के सवाल पर अमर बेख्तियार मुस्कुरा दी, मगर उसके पास कहने के लिए अल्फाज नहीं थे। नहीं आगा जान, आप तो बहुत अच्छे हैं, मेरी प्यारी पोती, जाओ अब नाश्ता कर लो। आगा जान ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा। जी आगा जान, अमन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और उठकर डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गई, मगर उसके जहन में आगा जान की हर बात मुसलसल गूंज रही थी। चाची नाश्ता। अमर किचन में दाखिल होते ही जरमीना बेगम के पास आकर नरमी से बोली। बच्चे बस अभी मुलाजमा के हाथ भिजवाती हूँ, तुम जाकर डाइनिंग पर बैठो। जरमीना बेगम ने चूल्हे पर रखा बर्तन हिलाते हुए मोहब्बत से जवाब दिया। जी अच्छा चाची। अमर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। कुछ देर बाद मुलाजमा उसके सामने नाश्ता रखकर वापस जा चुकी थी। अमर ने एक नजर पूरे घर पर दौड़ाई, जैसे किसी को तलाश कर रही हूँ, फिर बोली। चाची, खदीजा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? बेटा, वो तो यूनिवर्सिटी चली गई, आज उसका पहला दिन था इसलिए थोड़ी जल्दी चली गई। शर्मिला बेगम किचन से ही जवाब दिया। वो मुझसे मिलकर भी नहीं गई, बदतमीज। अमर उदास हुई थी। मैंने उसे कहा था कि तुम्हें उठा दे, लेकिन उसने बताया कि तुम रात काफी देर तक बुरहान का इंतजार करती रही थी, इसलिए भी मुझे भी मुनासिब नहीं लगा तुम्हारी नींद खराब करूं। जमीना बेगम ने जवाब दिया। चाची, आप इतनी अच्छी क्यों हैं? लगता ही नहीं कि आपकी बहू हूँ मैं। मैंने तो हमेशा से सुना था कि जब चाची सास बनती है तो उनमें जैसे जिन आ जाते हैं, फिर वो बहू से अपने आगे पीछे के सारे हिसाब
سارے بدلے لیتی ہیں، لیکن آپ تو آج بھی پہلے کی دن کی طرح سوئٹ ہے، ہمارے شرارتی انداز میں ہنستے ہوئے کہا زمینہ بیگم نے بے اختیار ہنس پڑی۔ امر بچی، تمہیں تو میں نے اپنے بچپن سے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے، تم پر ظلم کرنا تو اپنے دل کو ہی تکلیف دینے کے برابر ہوگا۔ میرے لیے تم صرف میری بہو نہیں ہو بلکہ میری اپنی بیٹی ہو۔ جس طرح ختیجہ میری بچی ہے بالکل اسی طرح تم بھی میرے دل کی بہت قریب ہو۔ میرے لیے تم دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ وہ چند قدم چل کر امر کے قریب آئی اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ سرمینا بیگم کے الفاظ سنتے ہی امر کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی، اس کا دل عجیب سی کسک سے بھر گیا۔ وہ انہی لوگوں کے ساتھ بے وفائی کرنے جا رہی تھی، وہ لوگ جو کبھی اس کے دکھ کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، آج اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہ رہے تھے۔ اس لمحے امر کو خود سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ اسی ایک وقت میں اس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا آج وہ یہاں سے ضرور ملے گی اور اسے وہ سب کچھ کہہ دے گی جو کہنا ضروری تھا۔ چاچی مجھے ایک ضروری کام ہے، میں ذرا قریب مارکیٹ تک جا رہی ہوں، ابھی واپس آ جاؤں گی، امر کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ لیکن بیٹا کہاں، ابھی تھوڑی دیر میں ختیجہ بھی آ جائے گی، پھر اس کے ساتھ چلی جانا۔ زمینہ بیگم فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ چاچی جان پریشان نہیں ہو، میں بس ابھی آ جاؤں گی، پرومس، میری ایک دوست کو میری ہیلپ چاہیے، بس اسی کے پاس جا رہی ہوں۔ امر نے مسکرا کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ اپنی چاچی سے بولا گیا امر کی زندگی کا پہلا جھوٹ تھا، اور یہ جھوٹ بولتے ہوئے اس کے دل پر جیسے کسی نے ایک بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا اور جلدی واپس آ جانا، سرمینا بیگم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جی اچھا۔ امر نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی مگر اس کے دل میں عجیب سی بے چینی مسلسل بڑھتی رہی جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جس راستے پہ قدم رکھنے جا رہی ہے شاید وہاں سے واپسی اتنی آسان نہیں ہوگی۔ ختیجہ یونیورسٹی کے مرکزی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو اس کی نظریں حیرت سے چاروں طرف گھومنے لگی۔ اتنی بڑی اور وسیع یونیورسٹی اس نے پہلی بار دیکھی تھی، ہر طرف طالب علم کے چھوٹے چھوٹے گروپ تھے، کوئی ہنستے مسکراتے باتیں کر رہا تھا، کوئی جلدی جلدی اپنی کلاس کی طرف جا رہا تھا، تو کئی سینئرز نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ ختیجہ نے ہلکا سا گہرا سانس لیا اور اپنے دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے۔ اسے اپنا ڈپارٹمنٹ اور کلاس روم ڈھونڈنا تھا مگر اتنی بڑی یونیورسٹی میں آخر کہاں سے تلاشی شروع کرے۔ وہ بے بسی سے ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی، کسی سے پوچھوں کیا، اسے خود ہی سے سرگوشی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے خود کو حوصلہ دیتے آہستہ سے بولی، ہاں پوچھ ہی لیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دو تین قدم آگے بڑھی۔ سامنے لان میں کچھ لڑکیوں اور لڑکیوں کا گروپ بیٹھا ہنس بول رہا تھا۔ ختیجہ نے ہلکی سی جھجک کے باوجود خود کو سنبھالا اور مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم، اس نے دھیمی مگر شائستہ آواز میں سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام جی بولیں۔ گروپ میں بیٹھے ایک لڑکے نے اس کی طرف دیکھا اور مختصر سا جواب دیتے ہوئے بولا۔ ختیجہ نے نظریں جھکا لی، نئے ماحول، نئے گھبراہٹ اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں پوچھنا تھا، وہ آہستہ سے بولی۔ اس لمحے نہ جانے کیوں اسے شدت سے عمل کی یاد آئی، اگر آج عمل اس کے ساتھ ہوتی تو شاید وہ اتنی گھبرا نہ رہی ہوتی۔ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کا سہارا بنتی تھی مگر آج اسے پہلی بار اکیلی ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ نہیں ہوں اس یونیورسٹی میں، وہی لڑکا اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ جی، ختیجہ نے مختصر سا جواب دیا۔ او، لڑکے نے معنی خیز انداز میں اپنے باقی دوستوں کی طرف دیکھا جن کے چہروں پر شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا، کون سا ڈپارٹمنٹ ہے، اس گروپ کی ایک لڑکی نے پوچھا۔ وہ دراصل یونیورسٹی کے سینئرز گروپ تھے، انگلش لٹریچر، ختیجہ نے نرمی سے جواب دیا۔ اوہ اچھا، یہ تو بہت آسان ہے، ایسا کرو یہاں سے سیدھا چلی جاؤ، پھر الٹے ہاتھ پہ مڑ جانا، اس کے بعد دوبارہ سیدھا چلتی رہنا، سامنے ہی تمہارا انگلش لٹریچر ڈپارٹمنٹ آ جائے گا۔ وہ لڑکا فوراً کھڑا ہو گیا، پھر نہایت سنجیدہ بن کر بولا۔ ختیجہ کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ آ گئی۔ تھینک یو سو مچ، اس نے شائستگی سے کہا اور اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑی۔ ابھی اس نے چند ہی قدم آگے بڑھائے تھے کہ اچانک ایک لڑکی جلدی سے اس کے قریب آئی۔ ہیلو، وہاں کہاں جا رہی ہو آپ، اس نے ختیجہ کو روکتے ہوئے پوچھا۔ ختیجہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی ہوں، وہاں کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، وہاں تو میل واش روم ہے، لڑکی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر نفی میں ہلایا۔ ختیجہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی مگر وہاں بیٹھے اسٹوڈنٹس نے تو یہی بتایا تھا۔ وہ اب پوری طرح کنفیوز ہو چکی تھی۔ لڑکی ہنس پڑی۔ ارے ٹینشن مت لو، انہوں نے میرے ساتھ بھی بالکل یہی مذاق کیا ہے، جب میں وہاں پہنچی تو سامنے میل واش روم تھا اور آس پاس کے کھڑے لڑکے مجھے دیکھ ہنس رہے تھے، میں تو اتنی ایمبیرس ہوئی کہ بس نہ ہی پوچھو۔ یہ سن کر ختیجہ نے بے اختیار پلٹ کر دور بیٹھے اس گروپ کی طرف دیکھا، وہاں موجود چند لڑکے اب بھی چوری چوری اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کیسا مزاق تھا، اگر میں بھی وہاں چلی جاتی تو کتنی شرمندگی ہوتی۔ وہ تھینک یو سو مچ، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ انگلش لٹریچر کا ڈپارٹمنٹ کہاں ہے، اس نے فوراً اس کی طرف دیکھ کر ممنونیت سے پوچھا۔
अरे आप तो मेरे ही डिपार्टमेंट के हैं, मेरे साथ चलिए, हमारी क्लास की एक ही है। लड़की के चेहरे पर दोस्ताना मुस्कुराहट फैल गई। ये सुनकर खतीजा के दिल का बोझ जैसे एक लम्हे के लिए हल्का हो गया। सच, उसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट, पहली बार मुस्कुराहट आई। जी बिल्कुल, आइए साथ में ढूंढते। वो दोनों साथ साथ चलने लगे। कुछ देर बाद खामोशी रही। फिर लड़की ने खुद ये बात का आगाज किया, वैसे मेरा नाम आयशा है और आपका? खतीजा। मेरा नाम खतीजा है। खतीजा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। नाइस टू मीट यू। आयशा ने दोस्ताना अंदाज में अपना हाथ आगे बढ़ाया। नाइस टू मीट यू टू। खतीजा ने भी मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। आयशा और खतीजा तेज तेज कदमों से चलते हुए आखिर अपनी क्लास के सामने पहुंच गई। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और अंदर लेक्चर शुरू हो चुका था। आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन था, उसलिए बकायदा पढ़ाई के बजाय सिर्फ तारुफ हो रहा था। दोनों ने हल्की सी दस्तक दी और क्लासरूम में दाखिल होने ही लगी थी कि सामने खड़े प्रोफेसर ने सख्त लहजे में उन्हें वहीं रोक दिया। आप दोनों को क्लास की टाइमिंग मालूम नहीं है? पहले ही दिन लेट हो गई। प्रोफेसर की गूंजदार आवाज पूरी क्लासरूम में फैल गई। आयशा तो फौरन रुकी, मगर खतीजा उसके पीछे खड़ी थी। उसने अभी तक नजर उठाकर प्रोफेसर को देखा भी नहीं था, लेकिन जैसे ही वो आवाज उसके कानों में पड़ी, उसके पूरे वजूद में एक झटका सा लगा। ये आवाज उसका दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया। आहिस्ता आहिस्ता उसने सर उठाया और अगले ही लम्हे उसकी आंखें हैरत से फैल गई। ये सामने कोई और नहीं बल्कि अरम सिकंदर खान खड़ा था। बुरहान खानजादा का करीबी दोस्त। खतीजा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। या अल्लाह, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने खुद से कहा। उसके चेहरे का रंग जैसे एकदम मुड़ गया। आयशा ने फौरन मासूमियत से सफाई दी। सॉरी सर, हम अपना डिपार्टमेंट ढूंढ रहे थे, इसीलिए लेट हो गए। आज पहला दिन है, इसलिए जाने देता हूँ, लेकिन आइंदा मेरी क्लास में वक्त से पहले आएंगी तभी क्लास अटेंड करने दूंगा, वरना नहीं। अब जाइए, अपनी जगह पर बैठ जाए। और हमने संजीदगी से उसकी बात सुनी। फिर करते सख्त लहजे में बोला, थैंक यू सर। आयशा ने सुकून का सांस लेते हुए कहा और खदीजा के साथ अंदर जाने लगी। अभी दोनों ने कदम आगे ही बढ़ाए थे कि अरहम की आवाज दोबारा गूंजी। मिस, आप ही लेट थी, तो क्या सॉरी बोलना जरूरी नहीं समझना? समझे? या फिर आपको अपनी टीचर की इज्जत करना नहीं आती? और हमने बाजू सीने पर बांधते हुए उसे देखा। खतीजा के कदम वहीं रुक गए। वो आहिस्ता से पलटी। पूरी क्लासरूम की नजरें एक साथ खतीजा पर जम गई। कुछ देर बाद दबी दबी हंसी भी उसके कानों तक पहुंच रही थी। खतीजा की आंखों में फौरन नमी उतर आई। आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। पहले सीनियर के मजाक में उसे शर्मिंदा किया और अब पूरी क्लास के सामने प्रोफेसर की डांट। उसका दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आंसू रोके। सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा, उसने आहिस्ता से कहा। अरहम की नजर उसकी नम आंखों पर पड़ी तो एक लम्हे के लिए वो खुद भी अंदर शर्मिंदा हो गया। उठ जाइए, बैठ जाए, उसने नर्म लहजे में कहा। खदीजा ने खामोशी से सर हिलाया। जल्दी से अपनी आंखें साफ की और आयशा के साथ जाकर एक निशेष पर बैठ गई। क्लास में खामोशी छा गई थी और हम दोबारा सबकी तरफ मुतवज्जा हुआ। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, मेरा नाम अरहम सिकंदर खान है और मैं आप सबको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाऊंगा। मुझे डिसिप्लिन बहुत पसंद है। जो भी असाइनमेंट दूंगा वक्त पर मुकम्मल करके जमा करवाएंगे, और जो असाइनमेंट वक्त पर जमा नहीं कराएगा, पूरे हफ्ते मेरी क्लास अटेंड नहीं करेगा और पेपर देने में भी मसला उसी को ही होगा। इसने क्लास उसने क्लास पर एक नजर डाली, फिर संजीदगी से बोला। खतीजा ने बेख्तियार मुंह बनाया। घर में तो ये शक मुझसे बर्दाश्त होता नहीं था, अब यूनिवर्सिटी में भी यही मेरी फेवरेट क्लास का प्रोफेसर निकला। या अल्लाह, आखिर कौन सी गुनाह की सजा दे रहे हैं आप मुझे? फिर ही दिल में वो बड़बड़ाई और वो अपने ख्यालों में इस कदर खो गई कि उसे एहसास ही ना हुआ कि अरहम लेक्चर देते हुए कब से उसकी डेस्क के सामने आकर खड़ा हो गया। मिस खतीजा। जी जी सर। खतीजा ने चौंक कर हॉल में वापस आई। क्या आप अपनी आंखों से छत में सुराख करने का इरादा रखते हैं? अरहम ने हल्की सी संजीदगी के साथ ऊपर छत की तरफ देखा, फिर उसकी आंख की तरफ। पूरा क्लासरूम एकदम खामोश हो गया। खतीजा हड़बड़ाई। नहीं सर, वो शर्मिंदगी से नजरें झुकाते हुए बोली। अच्छा, मुझे तो लगा जैसे जिस तवज्जो से आज छत को घूर रही है। नहीं सॉरी, मतलब देख देख रही हूँ, बल्कि घूर रही हैं। हाथ सुराख करके ही नजरें हटाएंगी। अरहम के लबों पर बेख्तियार हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। क्लास में तभी तभी हंसी गूंज उठी। खतीजा ने शर्मिंदगी से मुंह पीट लिया। अरहम दोबारा पूरी क्लास की तरफ मुतवज्जा हुआ। सो स्टूडेंट्स, अगर किसी को भी किसी भी चीज़ में कोई डाउट हो तो वो मेरे स्टाफ रूम आ सकता है, लेकिन सिर्फ बॉयज अकेले ही आएंगे। अगर गर्ल्स को आना हो तो प्लीज़ ग्रुप की सूरत में आए। मैं किसी भी लड़की को अकेले अपने रूम में आने की इजाज़त नहीं दूंगा। आई होप
आई मेड माई सेल्फ क्लियर। उसने जरा ठहर कर बात मुकम्मल की। यस सर, पूरी क्लास ने एक साथ जवाब दिया। और हमने जाते जाते एक लम्हे के लिए खदीजा की तरफ देखा, फिर क्लासरूम से बाहर निकल गया। उसके जाते ही आयशा ने लंबी सांस ली और दोनों हाथ कानों पर रख लिए। वाह यार, ये सर कितने हैंडसम है और डैशिंग है ना। सो क्यों पता नहीं इनकी शादी हुई है या नहीं, इतना प्यारा बोलते हैं। और सिंगल है, खतीजा ने मुंह बनाते हुए फौरन जवाब दिया। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? अगर ये वाकई सिंगल है तो प्लीज फिर मुझे इनका नंबर दे दो, मुझे तो इन पर क्रश आ गया है, मुझे इन्हीं से शादी करनी है। आयशा की आंखें खुशी से चमक उठी। उसकी बात सुनकर खतीजा ने लपी में जोर से सर हिलाया। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, वो बड़बड़ाई। यार उनकी बातें हो। आयशा अब भी उसके ख्यालों में थी। चलो कैंटीन चलते हैं, खतीजा उठते हुए बोली। नहीं, पहले मैं प्रोफेसर अरहम के स्टाफ रूम जाकर उनसे मिलूंगी। आयशा ने फौरन मुंह बनाया। ओफ लड़की, बस भी करो, अभी तो उन्होंने पूरी क्लास के सामने कहा है कि उन्हें कोई भी लड़की अकेले के रूम में नहीं आएगी। प्लीज चलो कैंटीन। खतीजा ने माथे पर हाथ मारा और कहते हुए उसने आयशा का हाथ पकड़ा और तकरीबन घसीटते हुए उसे कैंटीन की तरफ ले गई, जबकि आयशा जाते जाते भी मुड़ मुड़कर स्टाफ रूम की तरफ देख रही थी। जारी आप सबको आज वाली एपिसोड कैसी लगी कमेंट में लास्ट में बताइएगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।